I talked about my journey from the start. So, since I was born till the age of at least 10 and 11, I talked about my adoption, I talked about my abandonment, I talked about how a child feels about this, and I talked about a lot of other things which I think you should just go and see my life for that, because it'll be, I'll be taking a lot of time to explain everything again. So I think I'll just ask you people to go back to my page and watch my live that I had done earlier. So one thing that which was very important for all of us to think about is adoption is a big thing, of course, for the parents, for the children. But things I went through were so, like something that I didn't even realize, nor my parents realized at that time, that I've been going through these things and I still go through these things. So, adoption was a very, very difficult journey for me and my family. But it was fun, like I'm happy that I'm not lying somewhere randomly. I have a family, I have parents, I have a brother, I have amazing dogs. I have a life that I wouldn't have got if I wasn't, adopted. I might have been, struggling, I don't know what. तो उस स्ट्रगल से बेटर तो ये स्ट्रगल है जहाँ पे अपनी हेल्थ के साथ लड़ाई करते रहते हैं, जहाँ पे अपने आप के साथ लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जहाँ पे दूसरों से लड़ाइयाँ होती रहती हैं, which is also important, I guess. So, adoption was a very difficult period for me, as I've said in my earlier life. It was like a, like a very bad dream that still haunts me deep inside, which scares me. And I'm happy that I'm adopted, but I have gone through a lot of things that I'm not saying all adopted children would go through, but they might go through. So I've been doing these lives to talk about mental health, and I thought I should also tell my journey, because I've had some really weird experiences which might help other people going through mental health issues, to fix up in their life. और एटलीस्ट फील बेटर कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं हमारे जैसे, ना हम पागल हैं, ना हम क्रेजी हैं, ना हमें कोई इंस्टीट्यूशन भेज देना चाहिए. सो माई पेरेंट्स, व्हेन दे केम टू अडॉप्ट मी, एज आई हैव सेड अर्लियर, they were happy. They were very happy that, they are going to get a daughter who's going to, be a part of their life again. Someone who they didn't know before. So it was a very big thing for my parents also to know me, to start becoming friends with me, to start accepting me. I'm someone new to them also. So I've gone through a lot of struggle all throughout my childhood. But I'm glad, because I've become so strong, I guess, emotionally, that I know कि ठीक है यार, it's a phase, it'll go. It's not that कि है जिंदगी खत्म, ऐसा नहीं सोचती मैं. I always think कि नहीं, अगर अभी बुरा है तो आगे जाके कभी ना कभी तो सही होगा ना ये सब. तो it's a very difficult part where, adoption comes in, and a child who's been abandoned by their parents when they were so young. So the child starts to blame themselves, their adopted parents के इनकी वजह से हुआ है, या मेरी गलती थी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे छोड़ दिया, या नहीं मेरे ये पेरेंट्स मुझसे प्यार कर ही नहीं सकते, इनका खुद का बेटा है, ये मुझसे क्यों प्यार करेंगे, मैं इनकी फैमिली में थोड़ी ना रहती हूँ, मैं इनकी फैमिली में तो अभी आई हूँ, why am I going to be important to them? But नहीं, I have realized over these years that ऐसा नहीं है. My mother is so connected to me. She understands me without anything. I don't have to say anything. मैं किसी कोने में कहीं रो रही हूँ, मैं कहीं upset हूँ, my mother knows it. My father knows it. My brother knows it. They know it. I don't have to speak it out. कि अरे मैं बहुत परेशान हूँ, अरे मुझे ये हो रहा है, अरे मुझे वो हो रहा है. So guys, I've gone through a lot in my life. I keep saying it. सब लोगों की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और वो शेयर नहीं करते हैं, बट आई थॉट आई शुड शेयर, बिकॉज आई वॉन्ट पीपल लाइक मी हु गो थ्रू मेंटल हेल्थ also to be treated equally like all the other people.
थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा प्यार देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा केयर देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ेगा, शायद उनका थोड़ा बहुत रोना धोना लेना पड़े, उनके स्टूपिड थॉट्स लेने पड़े, बट गाइज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. मेंटल हेल्थ इज जस्ट अनदर एलिमेंट लाइक एनी अदर एलिमेंट, चाहे वो कैंसर हो, अस्थमा हो, फीवर हो, कोल्ड हो, एनी प्रॉब्लम, इट इज जस्ट लाइक दैट. द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने आप का, अपने आसपास के लोगों का, एंड ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स हैव टू बी सपोर्टिव. आई नो बहुत लोगों के पेरेंट्स शायद ये चीजें नहीं समझते हों, वो बोलते हो कि यार तू कैसी बातें कर रहा है एंड ऑल दैट, बट नहीं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. बिकॉज कोई ना कोई आपके पास ऐसा होगा जो आपको जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट करेगा, जो आप फील कर रहे हो वो बैठ के सुनने को तैयार होगा. इन माई केस इट वॉज माई पेरेंट्स, but in your case it could be a friend, it could be a relative, it could be a random person, you know, maybe you met someone online, but there will be people who would want to listen to you. Don't give up, because giving up is very easy, you know, but fighting this struggle and you know standing on your feet again and showing the world कि नहीं, तुम लोगों ने मुझे नीचे गिराया था, मैं आज फिर वापस उठी हूँ, मैं आज फिर वापस अपनी बातें बताऊंगी. I will tell how I feel because it's not your problem but it's my problem, and my problem I feel that अगर मैं बताऊंगी तो I will feel better. Why am I doing this live? Because मैं खुद भी better feel करती हूँ, प्लस आप लोगों की भी मदद होती है. So अपने experiences बताना बहुत important होता है. अपनी बातों को अपने अंदर मत रखो, वो तुम्हें खा जाएंगी. They will haunt you all your life. What is important is to share it. Talk to somebody. Somebody is going to listen, guys. Somebody is going to listen. So when I grew up, I had a lot of insecurities in any sort of relationship, you could say. Insecurities in, you know, losing people, insecurity of not getting loved by people, insecurity of not getting respect, insecurity of people judging me, insecurity of people leaving me and going, insecurity of people calling me mad. बहुत issues थे मेरी life में, and I'm not saying कि सिर्फ मेरी life में है. I want everyone to recognize कि अगर तुम किसी mental health के साथ deal कर रहे हो, guys, please don't give up. Talk to somebody. Fight it. We are not someone who has to give up. So I've discussed about a lot of things earlier, and now I'm going to discuss a few more today, which I thought is, you know, important for all of us to know. Our society is very insensitive about these people. So our society thinks कि अगर कोई mental health से deal कर रहा है तो वो पागल है, उसको पागल का tag मिल जाता है. But do you think पागल उनको बोलना सही होगा? Isn't it required कि हम थोड़ा sensitive हों, उनकी बात समझें, उनको किसी तरह मदद करें? मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था कि अगर कोई आपके आसपास ऐसी किसी भी बीमारी से जा रहा है, गुजर रहा है, तो उससे बैठ के अगर आप 15 मिनट या 10 मिनट भी अगर बैठ के बात कर लोगे तो आप उसको एक थोड़ी सी पुश दे दोगे, उसको थोड़ा बेटर फील करा दोगे. बट आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने 15 मिनट किसी को दे दिए. आई एम श्योर, बिकॉज एवरीबडी हैज दैट 15 मिनट्स ऑफ लाइफ एटलीस्ट, जो वो किसी को तो दे ही सकते हैं ना. And I am ready to give everything. Like, I am ready to talk to you people if you're going through any of these issues. I've always said that I am always there, no matter what happens. Because मैं गई हूँ and मुझे पता है कि loneliness just scares you to a very bad extent. It just scares you. You feel so, your confidence level goes down. You get scared of people. You don't know whom to trust, whom not to trust. सो जब मेरे पेरेंट्स मुझे अडॉप्ट करने आए थे, उनको बताया गया था दैट अगर कोई नॉन हिंदू अडॉप्ट करना चाहे तो उसको अडॉप्शन का राइट नहीं है, उसको सिर्फ वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, गार्डियनशिप फॉर ऑलमोस्ट 6 months. बट guys, is that fine? I mean, religion से क्या फर्क पड़ता है? What religion you are, you have to have the right to fight and to, be able to adopt. So my mother had filed a case in the Supreme Court, and it was a battle of, 7 years or 6 years, and she fought it. She didn't give up. She fought for the right कि कोई भी religion हो, that doesn't matter. You should be able to adopt. Because it's important to adopt. A lot of children are just, without parents. They need you.
एंड अडॉप्शन इज अ ग्रेट थिंग. इट इज अ ग्रेट थिंग. आप खुद सोचो, आप किसी और के बच्चे को अपने बच्चा बुला रहे हो, उसके लिए जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा. वो कहीं पड़ा नहीं है, वो किसी गलत हाथों में नहीं गया है, वो कोई स्टूपिड सा रोड पे कोई गंदा काम नहीं कर रहा है. वो सुनेगा आपको एंड दे विल अंडरस्टैंड वंस दे ग्रो अप. तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत इश्यूज थे. एज आई टोल्ड कि मैं बहुत वायलेंट थी, मैं बहुत अग्रेसिव चाइल्ड थी, मैं बहुत चीज़ें तोड़ती रहती थी. मेरा बिहेवियर ना, ये मम्मी पापा को लगता था कि नहीं, शायद ये सिर्फ टीनेज का है इशू, यू नो, बच्चे को अटेंशन चाहिए, बच्चा बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहा है. बट नहीं, देन दे रियलाइज दैट इट वॉज नॉट दैट. आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग. सो व्हेन आई स्टार्टेड काउंसलिंग, उसके पहले एक बहुत लंबा सा प्रोसेस था. तो मेरे मम्मी पापा अलग अलग काउंसलर्स के पास जाते थे, साइकेट्रिस्ट के पास जाते थे, उनसे मिलते थे, उन्हें बताते थे, उनसे बात करते थे. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, यू नो, टू फाइंड द राइट काउंसलर एंड द राइट साइकेट्रिस्ट. बिकॉज कोई भी आपको आई थिंक गाइड कर पाएगा अगर वो क्वालिफाइड है. बट जिस तरीके से आपको गाइडेंस चाहिए, वो आपको एक राइट काउंसलर या राइट साइकेट्रिस्ट ही दे पाएगा. राइट मेडिसिन की जरूरत होगी, राइट थेरेपी की जरूरत होगी. वो राइट काउंसलर या साइकेट्रिस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. मतलब हमारे केस में हुआ था. आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स. ऐसा नहीं है कि काउंसलर्स सारे खराब होते हैं, बट ऑब्वियसली अगर वो क्वालिफाइड है तो वो इस चीज के लिए क्वालिफाइड है. बट आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल करने के लिए आर दे क्वालिफाइड? लाइक व्हाट आई सेड, उनको सही होना पड़ेगा. आर दे गोइंग टू लिसन टू यू द वे यू need them to listen to you? Are they going to understand you? Are they not going to be judgmental? बहुत मुश्किल होता है guys. मेरे केस में तो काफ़ी आई थिंक 1.5-2 साल तक मेरे पेरेंट्स राइट काउंसलर साइकेट्रिस्ट ढूंढ रहे थे. मेरे स्कूल टाइम से शुरू हुआ था एंड इट एंडेड अप आफ्टर आई फिनिश्ड माई 12th व्हेन आई केम बैक टू दिल्ली. तब जाके मेरे को काउंसलिंग और ये सब में डाला गया था. मतलब आई वॉज यू नो put in under that process and I'm glad I did. I'm so glad I did. क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वेट बढ़ गया बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, बट दैट्स फाइन. वेट तो बढ़ता रहता है. मैंने पहले भी बोला था कि वेट तो भाई हमारे हाथ में, बढ़ गया है तो कम हो जाएगा. जिम करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जो भी करो, बट बढ़ जाएगा और ठीक हो जाएगा. बट तुमने ये देखा कि मैं आज स्माइल कर सकती हूँ, मैं आज स्ट्रांगली अपने एक्सपीरियंसेस बता सकती हूँ, मैं अपने बारे में ओपनली बोलती हूँ. मुझे शर्म नहीं आती है कि मैं एक मेंटल पेशेंट हूँ. तो क्या हुआ? यू नो, माई मदर टोल्ड मी टुडे मॉर्निंग that when we were discussing about this live कि शहर आज क्या क्या बोलना है and all, तो my mother was telling me that my father had gone somewhere and उनके किसी friend ने या किसी ने, मुझे नहीं पता कौन, but somebody told him कि शहर को ना एक mental institution में डाल दो. And my father came back and he told my mother. You know what my mother said? No, of course not. I'm never doing that. Why? जो बच्चा एक बार अबैंडन हो चुका है, आप उसको दोबारा कैसे अबैंडन कर सकते हो? उसने इतनी मुश्किल से लाइफ को एक्सेप्ट किया है, उसने इतनी मुश्किल से आपको एक्सेप्ट किया है, आपको इन द सेंस आपके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट किया है. आप कैसे कर सकते हो उसको अबैंडन? नो गाइज, यू कांट डू दैट. चाइल्ड हैज ऑलरेडी सफर्ड थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. दैट इज नॉट समथिंग दैट इज डन. इट्स नॉट एन ऑप्शन. हमारी हिंदी फिल्म्स में इतने स्टूपिड तरीके से दिखाते हैं ना ये मेंटल हेल्थ, मेंटल पेशेंट कैसा होता है, मेंटल असाइलम में डाल दिया जाता है, चेन से बांध देते हैं और क्या शॉक्स देते हैं. यही सब मैंने देखा था. एंड यू नो, द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू अ काउंसलर, अंकिता खन्ना, शी इज माई काउंसलर इन चिल्ड्रंस फर्स्ट, एंड डॉक्टर अमित सेन इज माई साइकेट्रिस्ट. सो व्हेन आई वेंट टू देम for the first time, I literally had 7 people with me. I was holding my मम्मी का दुपट्टा like that. I was so scared. I was like, मुझे कोई ले ना जाए. और मैं जब अंदर घुसी ना, वहाँ इतने सारे रूम्स थे, उसका environment इतना happening था, like drawings लगी हुई थी, colors थे, बच्चे थे. Children's First is an amazing place. Like अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, शायद मेरे मुंह पे ये स्माइल नहीं होता. It's an amazing place. And उन्होंने मुझे इतना अच्छा फील कराया. दे प्लेड गेम्स विद मी, दे ट्राइड टॉकिंग टू मी. उनके पास बहुत सारे खिलौने थे. सो आई हैड सम, आई डोंट नो, सम वियर्ड टॉय इन माई हैंड एंड आई वाज टॉकिंग टू देम. एंड आई थिंक थोड़ी देर में आई ओपनड अप टू देम. आई स्टार्टेड टॉकिंग. लाइक आई वाज स्कैर्ड. आई डिडंट लीव माई ममा's दुपट्टा, बट आई वाज फाइन आफ्टर दैट. लाइक
आई वॉज हैप्पी दैट मेरे सारे जानने वाले मेरे आसपास हैं. So an experience. So when I was in Ahmedabad, I was studying at that time. तो पता है क्या हुआ, एक बार मुझे ना बहुत मेजर अटैक आया था. लाइक अटैक इन द सेंस बहुत गंदा ब्रेकडाउन हुआ था. मैं घर से बाहर आ गई थी, रोड पे थी. लाइक रोड इन द सेंस सोसाइटी की जो रोड होती है वहां पे थी. एंड एट दैट टाइम ना, मैं पता नहीं कैसे, बट आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी. लाइक आई कुड like fight 7 people. Like I required 7 people to take control of me at that time. It was so difficult. मैं इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती मुझ में, मैं धक्का मार देती थी, मैं उठा के मतलब ऐसे फेंक देती थी लोगों को. इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर माई मदर. अगर ये चीज़ मेरी मम्मा अकेले होती वहाँ, तो मेरी मॉम मुझे शायद कभी समझ नहीं पाती, ना संभाल पाती. बट माई मदर, शी वॉज वेरी ओपन अबाउट दिस. तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे पेशेंट है, तो आप प्लीज लोगों से बात करिए. ऑलवेज मेक श्योर यू हैव अ लार्ज सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू, कि कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, कोई आपसे सवाल जवाब ना करे, बस आपके साथ आए. मम्मा को बस ये बोलना पड़ता था. सो आई हैड अ लॉट ऑफ पीपल एट दैट टाइम. लाइक आई हैड माई मेड, आई हैड मनन भैया, I had Dev Bhaiya, I had Manisha Behan, I had so many people, Nurjan Behan, I had everybody. And वो सब मम्मा के एक फोन पे कि सहर को जरूरत है, सहर इज नॉट फाइन, they all used to rush to me, चाहे मैं जहाँ पे भी होती थी. एंड माई मदर ऑलवेज हैड their support. उनको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती थी कि यार इसको ये हो गया, उसको वो गया. इतना टाइम ही नहीं होता था उस समय. अगर ऐसा कुछ भी होता तो पता नहीं क्या हो जाता. बट माई मदर ऑलवेज हैड अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आप अकेले ना इस टाइम पे शायद ना संभाल पाओ, और शायद आप उनके पेरेंट्स हो. सपोज मेरी मॉम भी उस समय पे ना एक पॉइंट के बाद वीक पड़ जाती थी. मेरी मॉम डर जाती थी, मेरी मॉम समझ नहीं पाती थी कि मेरी बेटी को क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मदर. ऑब्वियसली उन्होंने बचपन से देखा है, वो अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहती है. मम्मी क्यों, पापा भी यार. लास्ट टाइम मेरे पापा बोले थे, मेरे बारे में नहीं बोला. सो आई थॉट आई से अबाउट हिम बिकॉज आई डोंट वांट हिम टू फील लेफ्ट आउट. तो क्या हुआ कि आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, ऑल दिस सपोर्ट सिस्टम अगर ये नहीं होता, तो आई एम श्योर आज मैं यहाँ नहीं होती, खुश नहीं होती, अपने बारे में बता नहीं पा रही होती. मेरी मॉम बहुत डरी हुई रहती हर समय. बट मम्मा ऑलवेज हैड अ सपोर्ट सिस्टम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है. मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड सो आई मेड अ लिटिल नोट्स टुडे ऑल्सो, बिकॉज लास्ट टाइम तो मेरे नोट्स उड़ गए थे, तो इस बार मैं अच्छे से बना के आई हूँ. One second guys, I'm sorry, I'm a little nervous today for some reason. So mental health issue has to be taken care of. It cannot be ignored. So I have a few examples of my own life. School time में all the teachers they were like सहर से नहीं होगा, सहर नहीं पढ़ पाएगी, सहर की अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है, सहर क्लास ही अटेंड नहीं कर पा रही है. So I had a great counselor in my school whose name was Ajab, and she was like, she used to always fight for me कि नहीं यार मैं सहर को क्लास लाऊंगी, सहर को एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए मैं पढ़ाऊंगी, बट मैं सहर के एग्जाम्स पास करवाऊंगी. और मैंने अपने 12th पास की थी. मैं अपने 12th फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ली मैंने. शायद मैं नहीं कर पाती क्योंकि इतने ब्रेकडाउन होते थे ना मुझे, हर दूसरे दिन ब्रेकडाउन. एक दुकान वाले ने मुझे कुछ कह दिया तो ब्रेकडाउन, कोई रैंडम आंटी अंकल जा रहे हैं उन्होंने बोल दिया तो ब्रेकडाउन. कोई भी चीज आकर कर सकता है ऐसे ब्रेकडाउन. कोई भी छोटी सी छोटी चीज जो आपको लग रहा हो ना कि यार ये तो क्या है, अगर कोई मुझे पागल बोल देता था ना, लाइक ऐसे मजाक में, अरे यार तू सहर पागल है क्या, आई यूज्ड टू फील सो ऑफेंडेड. आई वाज लाइक हाउ डेयर यू से दैट टू मी. और मैं टूट जाती थी, लिटरली मैं रोने लगती थी. आई यूज्ड टू फील सो स्कैर्ड. मुझे इतना अजीब लगता था ना, आप सोच नहीं सकते. और मेरी मॉम डैड इन सबको ये सब समझने में ना बहुत टाइम लगा. मैंने यही बोला था अभी थोड़ी देर पहले भी कि इन लोग, मेरे पेरेंट्स को लगा था कि ये सब टीनेज की प्रॉब्लम्स हैं जो हर बच्चे की लाइफ में होता है. टीनेज के इश्यूज होते हैं, बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, लाइफ कैसे हैंडल करनी है वो समझ रहा होता है बच्चा. लाइफ में फाइनली खुद इंडिपेंडेंट होना शुरू होता है वो बच्चा. तो वही मेरे पेरेंट्स को लगा कि शायद दिस इज लाइक दैट, बट ऐसा नहीं था. आई वॉज इल
एंड मेंटल हेल्थ को इतना बड़ा टैबू क्यों बना रखा है लोगों ने? क्यों? वाई इज इट इवन इम्पोर्टेंट? मेंटल हेल्थ इज जस्ट लाइक एनी अदर एलिमेंट. मैंने बहुत बार ना स्टेजेस पे भी बोला है, मैं अपनी लाइफ में भी यही बोलती हूँ कि मेंटल हेल्थ भी तो एक ऐसा ही इशू है कैंसर की तरह, कोई भी बीमारी की तरह. तो हम उसको भी थोड़ी सेंसिटिवली हैंडल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इज इट लाइक वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल somebody, टू टेक केयर ऑफ somebody, टू मेक them फील बेटर? आई एम श्योर अगर आप ऐसा करोगे ना, आप बहुत अच्छा फील करोगे अंदर से, क्योंकि मैं भी करती हूँ. मैंने इतने लोगों की मदद करने की कोशिश की है ना, आप सोच नहीं सकते. और मैं तब तक मदद करती थी जब तक मुझसे होता था, क्योंकि अगर मैं मेंटल पेशेंट हूँ जैसे, और मैं किसी और बंदे की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ या पर्सन की, तो उनकी जो स्टोरीज है ना, वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मेरे लिए भी क्रिएट कर सकते हैं. बिकॉज मेंटल हेल्थ इज समथिंग जो शायद जिंदगी भर आपके साथ रहे, शायद थोड़े टाइम में खत्म हो जाए, शायद कुछ साल में खत्म हो जाए, और शायद कभी खत्म ना हो, कहीं ना कहीं रहेगा. मेंटल हेल्थ इज अ थिंग विच माइट अकर थ्रू एनीथिंग. एंड शायद पूरी तरह से, जैसे मैं आज बोल सकती हूँ कि मैं पूरी तरह शायद ठीक हो चुकी हूँ, बट एनीथिंग इन लाइफ कैन गेट इट बैक इन टू मी. एनीथिंग, कोई छोटी सी छोटी चीज जो किसी और ने सोची भी नहीं होगी ना, वो चीज भी मुझे आज अफेक्ट कर सकती है और मैं वापस वहीं जा सकती हूँ. गाइस, पता है, आप लोग सुनते होंगे लोगों ने सुसाइड कर लिया, लोग गिव अप कर देते हैं. पता है, मैंने इतने लोगों को देखा है ना, कुछ लोगों ने सुसाइड किया है, मैंने वो भी सुना है. कुछ लोग सिगरेट पीते हैं ताकि उनकी टेंशन कम हो जाए, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील करे. कुछ लोग जिनकी मदद नहीं हो पाती है, दे माइट गेट इनटू ड्रग्स. यस, बिकॉज उनको लगता है कि लाइफ में कुछ और तो कर नहीं रहे, हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो शायद तो कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं टू गेट अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. उन्हें लगता है कोई सपोर्ट तो कर ही नहीं रहा, तो ड्रग्स उनकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है. बट drugs and all is just going to harm. Like, I have never thought of doing any of these things. I'm so glad I had a great support system around me. But कुछ लोगों को होता है, वो लोगों के पास और कोई, उनको लगता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है. You know, there was a time when even I harmed myself. And pretty bad that too. But I think it was just an experience for me. उस समय मैं नहीं समझ पाई क्या हुआ. मेरी मॉम डर गई थी, मेरे डैड नहीं थे इंडिया में तब, मेरा भाई वैसे भी बॉम्बे में रहता है. बट इट वॉज जस्ट समथिंग दैट हुआ एंड नाउ इट्स फाइन. आई डोंट फील लाइक हर्टिंग माई सेल्फ एनी मोर. मुझे लगता है कि आई हैव बेटर वेज टू डील विद दीज थिंग्स. आई हैव रिटन अ पोम ऑल्सो, कलरिंग अवे द वुंड्स. मैंने वॉल पे कली डाली थी, तो उसमें मैंने लिखा है कि मैंने अपने आप को हार्म किया था. बट मुझे अब ये भी पता है कि मेरे को हार्म करने के अलावा भी तरीके हैं इन चीज़ों से डील करने के लिए. जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ, मे बी गो फॉर अ वॉक, एक्सरसाइज, टॉक टू पीपल, टॉक टू योर पेरेंट्स, प्ले विद डॉग्स. आई डू दीज थिंग्स. तो डोंट गिव अप, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन. कभी टाइम लगता है आने में, बट ठीक है, सोल्यूशन मिल जाएगा ना. हमेशा सोल्यूशन के पीछे भी नहीं भाग सकते हम, बट कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ का सोल्यूशन आ ही जाएगा. जैसे आज मेरी लाइफ में आया, काउंसलर्स के थ्रू, साइकेट्रिस्ट के थ्रू, मेरे पेरेंट्स के थ्रू, बाकी लोगों के थ्रू. आई एम फाइन नाउ एंड आई एम सो ग्लैड दैट मैंने अपने पेरेंट्स की बात सुनी, मैंने काउंसलिंग भी की. पता है, स्टार्टिंग में मुझे इतना डर लगता था जाने में काउंसलिंग के लिए, तो मेरी मम्मी पापा को मुझे ना जबरदस्ती भेजना पड़ता था. एंड आई वाज लाइक, मैं क्या करूँ उनसे, क्या बात करूँ मैं उनसे जाके. पर फिर धीरे धीरे आई बिकेम रिस्पॉन्सिबल इन अ वे दैट मैं अपने फादर को बोलती थी कि पापा मेरी ना दवाइयाँ खत्म हो रही है, आप जाके मेरी मेडिसिन ले आओ. या मैं अपनी मम्मी को बोलती थी, मम्मा मेरे ना काउंसलिंग का सेशन है नेक्स्ट वीक, तो वो एक बार बुक कर दो मेरे लिए. जो साइकेट्रिस्ट के पास मैं जाती हूँ ना, उनके अपॉइंटमेंट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं. लाइक उनके अपॉइंटमेंट के लिए मुझे भी 3-4 महीने वेट करना पड़ता था. So it was very difficult. So I have a few examples that I have gone through in life. तो मेरी मम्मा मुझे बता रही थी आज कि वो मुझे ना मूलचंद हॉस्पिटल लेके गई थी. वहाँ पे पूरा मेंटल हेल्थ का एक अलग डिपार्टमेंट था, लाइक अलग जगह थी.
तो वहाँ पे जब मैं गई ना मम्मी के साथ, डरी वैसे कैसे भी चली गई, कुछ समझ वमझ आया नहीं, और ये सारी बातें मुझे याद भी नहीं है, मुझे मॉम ने खुद बताई हैं आज। तो व्हाट हैपेंड इज के वहाँ गई, मेरी मॉम को भी ना बहुत गंदी सी वाइब आई कि एक इंसान जो ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहा है वो एक ऐसी अजीब सी आइसोलेटेड सी जगह में आके तो ऑब्वियसली और अनकंफर्टेबल ही फील करेगा। एंड उसके बाद मम्मा वाज लाइक शी जस्ट टुक मी अवे, शी डिडंट वांट मी टू स्टे देयर, एंड मम्मा मुझे वापस घर ले आई, शी डिडंट टेक मी देयर। तो one more experience that I had, so I had a counselor, no, I had a psychiatrist in Dwarka, his name was Dr. Mehta. So मैं उनके पास जाती थी ना, उनके वहाँ इतनी लंबी लाइनें लगी होती थी क्या बोलते हैं पेशेंट्स की, और हमारे जैसे जो वो होते हैं पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है टू वेट। वी आर वेरी रेस्टलेस इनसाइड, हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमसे ऐसे वेट नहीं होगा कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, हम बैठे हुए हैं आराम से, कभी कुछ फोन में कर रहे हैं, कभी किसी से बात हो गई, हम बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, हम इम्पेशेंट होने लगते हैं। मुझे ना ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, मैं ऐसे हो जाती थी कि मुझे नहीं जाना। तो मेरी मम्मी उन्हें फ़ोन करती थी, उन्हें बोलती थी कि डॉक्टर जब आप बिल्कुल आपका क्लिनिक बंद करने वाले हो ना तब आप हमें बुलाना, क्योंकि सेहत बहुत रेस्टलेस हो जाती है। तो मैं अपनी मम्मी के साथ, कभी पापा के साथ, कभी किसी के साथ जाती थी और मैं वहाँ पे बैठती थी, फिर मुझे मैक्सिमम 5-10 मिनट में वो बुला लेते थे, बिकॉज मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती थी एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी अनॉयड कि मेरे से नहीं बैठा जाएगा, मुझे घर जाना है, अभी लेके जाओ। फिर मेरे को ब्रेकडाउन किसी ना किसी बात पे तो होते ही थे, और इन बातों पे भी होते थे कि मुझे क्यों वेट करा रहे हैं, मुझे नहीं वेट करना, मैं क्यों वेट करूँ। अब उनको एंड मुझे ऐसा लगता था उनको मुझसे मिलना है, मुझे ये नहीं लगता था कि मुझे उनकी जरूरत है, मुझे लगता था कि उनको मेरी जरूरत है। तो मैं बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाती थी। तो अनदर एक्सपीरियंस, नॉट एक्सपीरियंस बट जस्ट अ पॉइंट, तो हमारी दुनिया में जो है बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेंटल हेल्थ का जो ट्रीटमेंट होता है वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव चीज़ है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है कभी कभी टू फाइंड द राइट काउंसलर, राइट साइकेट्रिस्ट, यू माइट हैव टू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड नॉट एवरी वन हैज़ दैट काइंड ऑफ मनी। हमारे पास इतने कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ अच्छे डॉक्टर्स होते हों, जो गरीब लोग हैं उनके मदद कर पाए, ऐसा बहुत कम जगह है, और वहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी कच होती है, वहाँ ऐसे पेशेंट्स जाएंगे तो वो वैसे ही परेशान हो जाएंगे, वो अपनी इतने सारी प्रॉब्लम्स के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं, तो उनके लिए तो और भी डिफिकल्ट है ना ऐसे लाइन में खड़े हो जाना, बहुत सारा भीड़ देख के मैं भी घबरा जाती थी, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। सो आई जस्ट हैड टू थिंक कि वी नीड मोर हॉस्पिटल्स जहाँ पे ऐसे चेकअप्स फ्री में हो, जहाँ पे ऐसी मदद फ्री में हो, ऐसे मे बी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, बट लोगों को नहीं पता होता है, इतना बड़ा टैबू बना रखा है लोगों ने इस चीज़ को, तो उन्हें लगता है कि नहीं, लेट्स जस्ट चक इट, उन्हें लगता है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू गो टू अ डॉक्टर। बट आई एम सीरियसली टेलिंग, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मेरे पास डॉक्टर्स नहीं होते, मैंने दवाइयाँ नहीं खाई होती, मैंने टाइम पे अपनी काउंसलिंग नहीं की होती, थेरेपी नहीं ली होती, तो मैं शायद अभी ठीक नहीं होती। मुझे 6-7 साल लगे, जब पता चला उसके बाद 6-7 साल लगे टू गेट आउट ऑफ इट, टू बी बोल्ड इनफ टू टेक अप लाइफ अगेन, टू टॉक टू पीपल, टू टॉक टू न्यू पीपल, टू हैव रिलेशनशिप्स विद पीपल जो लॉन्ग टर्म चले। इट्स वेरी डिफिकल्ट, लाइक मैं तो मतलब बता भी नहीं सकती मेरी क्या हालत होती है। मैं इतना डर जाती थी, मैं अपनी खुद की फैमिली गैदरिंग्स पे नहीं जा पाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे वहाँ पे भी जज करेंगे, पर मैं किसी तरह मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं जाती थी, बट फिर मैं किसी ना किसी तरह चली भी जाती थी, क्योंकि मम्मी कहती थी चलो यू विल फील बेटर, घर पे भी पढ़े रह के क्या करोगे। आपको पता है मैं अपनी लाइफ के 2.5 years घर पे रही हूँ, लिटरली 2.5 years। मुझे अपने घर से बाहर निकलने में डर लगता था, मैं अपने घर से बाहर निकल के मार्केट तक भी नहीं जा पाती थी, इट वॉज दैट डिफिकल्ट फॉर मी। मुझे डर लगता था कि मार्केट में कोई मुझे कुछ ऊट पटांग बोल देगा, कोई मुझे कुछ हर्ट कर देगा कुछ करके, क्या पता मैं मार्केट में वायलेंट हो जाऊं, क्या पता मैं अपना कंट्रोल लूज कर दूं, मैं इमोशनली अपने आप को संभाल ना पाऊं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पे हंसेंगे। इट्स अ लॉट ऑफ things going through your brain at that time, you don't know. So what I want to say is
if somebody is going through some things, please be sensitive. Please be sensitive. It is very important. It is required by them. उनको ज़रूरत है आप लोगों की, उनको ज़रूरत है सपोर्ट सिस्टम की, उनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा केयर की, उनको ज़रूरत है कि आप उनकी तरफ सेंसिटिव हो. अगर वो आपको बोल रहे हैं कि मुझे अपनी जान लेने का मन कर रहा है, आप उन पर हंसिए मत. आप उनसे बात करिए, आप पता करिए कि वो क्यों ऐसा फील कर रहा है, क्या हुआ है उसकी लाइफ में. अगर ऐसे पेशेंट्स अपनी चीज़ें अपने अंदर से निकालेंगे ना बाहर, वो बहुत ज़्यादा लाइटर फील करेंगे. मैं भी लाइफ पे आने के बाद बहुत खुश हो जाती हूँ, बिकॉज इट रियली हेल्प्स मी. आप लोगों से बात करके मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचती भी हूँ, पर फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि सहर, ये हो चुका, अब तो आगे बढ़ सकती है. It's time for you to think in a different way about yourself, about people around you. हर कोई जिंदगी में बुरा नहीं हो सकता या हर कोई अच्छा भी नहीं हो सकता. I always had that behavior. जब मैंने रियलाइज करना शुरू किया कि लोग ऐसे भी होते हैं, अच्छे लोग भी हो सकते हैं, मदद भी करना चाहते हैं, हर कोई बस हंसेगा नहीं, हर कोई सिर्फ मजाक नहीं उड़ाएगा. It really helps. एंड मैंने बहुत लोगों का पीछा भी, मतलब ऐसे पकड़ के भी रखा था उनको कुछ और करने नहीं देना चाहती, उनको हमेशा अपने पास रखना चाहती थी. सिर्फ मी एंड मी. आप मेरे हो, आप मेरे ही रहो, आप किसी और के नहीं हो. पता है, मैं बहुत टाइम्स ऐसा भी होता है, जब भैया दिल्ली आता है, मेरा साहिर भैया जब बॉम्बे से दिल्ली आते हैं, मैं बहुत इनसिक्योर हो जाती हूँ कि यार साहिर भैया आ जाएंगे, अब तो मम्मा पापा सिर्फ साहिर भैया के फेवरेट खाने के बारे में सोचेंगे, सिर्फ साहिर भैया के बारे में सोचेंगे. मुझे आज भी इनसिक्योरिटीज हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं, और मैं अभी भी उनके साथ लड़ने को तैयार हूँ. मुझे पता है कि मैं इनसिक्योरिटीज से आगे बढ़ूंगी कभी ना कभी. देयर विल बी अ टाइम जब मेरी इनसिक्योरिटीज कम होंगी, जब मेरे फियर कम होंगे. आई हैव अ लॉट ऑफ फियर. कितने अलग अलग तरीकों के फियर्स हैं मेरे पास. छिपकली का फियर ना बहुत आसान होता है एक्चुअली, बट फियर ऑफ लूजिंग पीपल अगेन, फियर ऑफ लूजिंग योर पेरेंट्स, fear of people making fun of you, fear of being judged. There are a lot of fears a mental patient would go through, but I think it's time we realize that mental health is another ailment which can be treated. अगर सपोर्ट हो, प्यार हो, सब कुछ हो, तो आई एम श्योर यू कैन. सो मैं पहली बार ये बोल रही थी कि अशेम्ड मत हो. लोग क्या सोचेंगे, दैट्स देयर प्रॉब्लम. ये पता है, मुझे शायद कुछ कमेंट्स भी आए थे अभी रिसेंटली. आई थिंक मैंने कुछ तो पोस्ट किया था, सम पोम और समथिंग. पीपल वर राइटिंग कि अगर लोग ऐसा सोचते हैं ना, ये उनकी प्रॉब्लम है. अगर लोग ये इशू को नहीं समझते, वो उनकी प्रॉब्लम है. It's not our problem. We are not at fault. We are sick. We need people who can care for us, who can love us. Because बुरे लोग तो होते ही हैं ना दुनिया में. अब हम ये तो गारंटी नहीं ले सकते कि सारे जितने लोग हों वो अच्छे ही हों, या सारे जितने लोग हों वो हमें अच्छे से समझें. But what we can do is, at least अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता है और आपको लगता है कि किसी को मेंटल एलिमेंट है, तो आप उनकी मदद करिए, उन्हें इग्नोर मत करिए, उनको अबैंडन मत करिए फिर से. It's very difficult for any of us to deal with such things. So, I think I've covered a lot of things today, and I'll see you guys next time. Time is up anyways, 5:35 हो गए हैं, तो I think I should go. I love you all. Bye. Take care. See you.